First, I'm going to request Member Parliament Telmo, instead of saying a long word afterwards, just like my name, I will request him to come and say a few words to us from the point of view of what the government is going to do for us, and as well as the plan they have for our site, and also the commitments they made before the election. Telmo, sir. Thank you, Swami. We welcome you. Since you arrived, the sun has come out. Since you arrived, the sun has come out. Can I say that as Speaker of the Parliament of Victoria, I'm privileged and honored to be here at the Rockbank Temple and to say to the Swami that the community here is fantastic, that you do so much work for the homeless, not just in your community, but in the broader community, by supporting the Breakfast Club program, by giving so much food to the refugee center, and by giving out to the community so generously. So, sir and Swami, you're amongst great, great people in this area. We welcome you again. I was very honored. And the Parliament of Victoria, you can see our website, welcomed the Swami to the Parliament on Friday. And can I say there was a lot of excitement. Believe me, all political parties, the President, myself, every political party in Victoria said to the Swami, welcome. You're among friends, and I can assure you that you will be in our hearts. You will be in our hearts. And we thank you for your reflections, for the spiritual sharings and wisdom that you left with us in the Parliament, and for the teachings about justice, about equality, and about your concerns for the most needy in the community. For that we thank you, and I ask you to join me in saying to the Swami, thank you, thank you, thank you. Can I say that we are very honored in Victoria to have this wonderful Indian community, Indian-Australian community, and indeed from the world and the subcontinent. They are, as you know, great citizens of this nation. They, as I and others, the councillors included, have come from all parts of the world, and we live in the generous, very generous land of the Wurundjeri people, of the Kulin Nation, the indigenous people of this nation, to whom we pay respect, to the elders past and present. And we respect their generosity for sharing this wonderful land with so many of us. So Swami, from our heart, you and I have made an arrangement. You come to see us in our home, and I will come and see you at your home in India. We will be there with a parliamentary delegation. And we will ensure that we continue to be in contact and to enjoy our friendship. So God bless you. May you have a long, 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 long life. And we thank you for sharing your teachings of yoga, of peace and of harmony, not just with the Indian community, but with the world. And don't we need that, so much of that? Don't we need so much of peace and of harmony? So we thank you. We are grateful for your presence in Melbourne and in Victoria. Thank you. May I now request Councillor Bobden to say a few words from the side of the Melton Council. Thank you for inviting me here today to meet such a special guest, Swami. I'd like to just say on behalf of the City of Melton how proud we are of all the communities of Melton, and especially our Indian community, which is very supportive of our community. Just recently we had Harmony Day, which was a couple of weeks ago, and in the week leading up we had many different festivals and functions happening, which many of you would have attended during that week. It makes it more important that you're part of our community. I, like many of you, come from overseas,
many years ago. And it's important to have all our cultures here. We all enjoy each other's cultures. And once again, welcome Swami Ramdev. Have a lovely afternoon. Thank you. Thank you. I'll also like to invite Mrs. Komal Mehrani. You all know her by your voice and a thrilling voice on SBS Hindi program. She has been a great producer of the program. Komal ji. मित्रों, आप सब से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बाबा रामदेव यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, पदार्पण किया है उन्होंने। और दुर्गा मंदिर के भी कई स्वप्न हैं, वो बाबा रामदेव जी के आने से, आगमन से अवश्य ही साकार होंगे। बात करें हिंदी की तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम सब की भाषा है। भारत के सभी लोग, यूँ कहिए 80% लोग तो हिंदी किसी न किसी हद तक बोल ही सकते हैं, और समझ तो मेरे ख्याल में 90% लोग ज़रूर समझ सकते हैं। हिंदी का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और यहाँ पर भी हिंदी को स्कूलों में पढ़ाने की बात कही जा रही है। तो मित्रों, आप सब से मिलकर बहुत खुशी हुई है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी रामदेव जी का एक बार फिर से आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि हमारी भाषा फूलती फलती रहे और धर्म का विकास होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत धन्यवाद। Once again, thank you. बाबा रामदेव जी के हृदय में जो देश के प्रति जो भावना है, जो देशभक्ति है, उसके लिए चंद लाइनें आपके लिए भी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अभी आपकी तालियों के बीच स्वामी जी का एक बार फिर से अभिनंदन। आपके सम्मुख स्वामी रामदेव जी, धन्यवाद। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांतिश शांतिश शांति। मैं सबसे पहले देश के बाहर यूके में गया था। My first visit was in UK. Second in USA, after then South Africa, Japan, Singapore, and फिर पूरे यूरोपियन कंट्रीज में गया। लेकिन मैंने देखा दुनिया का, देखो अपना देश तो सभी को प्यारा होता है। भारत के बाद मुझे सबसे प्यारा देश लगा तो ऑस्ट्रेलिया लगा।
और ये देखो, मैं खाली इसलिए नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं इसलिए आपकी बड़ाई कर रहा हूं, ये मैं आपको दिल की बात कह रहा हूं। यहां बहुत सी चीजें हैं जो प्यारी हैं। यहाँ की 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं और बहुत ज्यादा सोशल हैं, स्पिरिचुअल हैं। और इंडिया में कोई काला पानी नाम बोले तो लोग घबराते थे। तो ये हमारे ब्रिटिशर्स का काला पानी था और आप लोगों ने इस काले पानी को, इस ब्लैक वाटर को गोल्डन वाटर कर दिया। मीन्स इतना ज्यादा पुरुषार्थ किया। अब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां बैठो वहीं जमीन के नीचे कहीं पेट्रोल है, कहीं गैस है, कहीं आयरन है, कहीं कोल है। धरती ने इसको माने असीम ऊर्जा से, असीम ऐश्वर्य से भरा हुआ है। जो हम वेद में मंत्र पढ़ते हैं, हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे। और हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने पिछले 10-15 सालों में ऑस्ट्रेलिया को भी आगे बढ़ाया है और भारत का भी नाम बहुत ऊंचा किया है। और हमारे आज के चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट मिस्टर टेल्मो, वो तो हमारे डिवाइन ब्रदर हो गए। यू आर ऑलवेज इन आवर हार्ट्स, इन आवर सोल्स। और मुझे लगता है कि आप लोग आगे और अच्छा करेंगे हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए, यहाँ के हार्मनी के लिए, यहाँ के पीस के लिए, यहाँ के स्पिरिचुअलिटी के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए। और हमारे बॉब टर्नर जी, एक बार इन दोनों का भी सब की ओर से जरा अभिनंदन इतना जोरदार किया करो। वेलकम मिस्टर टेल्मो एंड मिस्टर बॉब। और आप सब, मैं तो देख रहा हूं अभी ये मंदिर जो है, जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, देखो मैं 100% चैरिटी करता हूं। जो कुछ मेरे पास है 100% फॉर चैरिटी। आई हैव नो सिंगल पेनी। मेरा झोला रखा है, किधर है मेरा झोला? इस झोले के अंदर आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा। बिना 1 रुपए के। और कोई कार्ड होते हैं ना, कौन कौन से कार्ड होते हैं? क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड। आई हैव नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, नो बैंक अकाउंट। ये देखो, ये पूरा झोला इतना सा है, कोई भी देख सकता है, खाली खाली है ये पूरा का पूरा झोला। क्या है? एक संकल्प है कि जो मुझे भगवान ने दिया है वो पूरा मुझे वापस देना है। दिस होल एग्जिस्टेंस फॉर मी एंड माई एग्जिस्टेंस फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। दिस इज माई विजन। तो आप लोग 100% चैरिटी नहीं कर सकते। आपका फैमिली भी है, आपका वाइफ है, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे हैं। तो आप लोग 5 to 10% से शुरू करो। जो आप अर्न करते हो 5 to 10% आपको चैरिटी में लगाना और सबसे पहले दुर्गा टेम्पल को विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल बनाना है। थोड़ा थोड़ा चैरिटी करो। 5 to 10% यू कैन कंट्रीब्यूट हियर फॉर ए वर्ल्ड क्लास दुर्गा टेम्पल। और मुझे लगता है जब मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया आऊंगा तब तक ये दुर्गा टेम्पल वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, क्योंकि आप भी वर्ल्ड सिटीजन है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ये सबका है। सब यहां वर्ल्ड सिटीजन है। बेचारे अबोरिजिनीज तो ठीक है, बेचारे गुजारा कर रहे हैं। सभी यहां पर जो भी हैं सब वर्ल्ड सिटीजन है। और ये जब सब यहां पर वर्ल्ड सिटीजन हैं तो दुर्गा टेम्पल भी ऐसा होना चाहिए कि इसमें मंदिर के साथ सोशल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, योगा, आयुर्वेदा, दुर्गा टेम्पल में पूरा हिंदुस्तान दिखना चाहिए। ऐसा करके दिखा दो यार, कंप्लीट हिंदुस्तान, कंप्लीट इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन योग, इंडियन आयुर्वेदा, इंडियन डांस, सब कुछ। यहां हीरो हीरोइन को मत नचाना।
यहाँ दारू पीने वाले और मांस खाने वालों के ठुमके नहीं लगने चाहिए। आपको यदि यहाँ पर नृत्य भी करवाना है तो भरत नाट्यम करवाना, और दूसरी तरह के अच्छे अच्छे नृत्य है। हीरो हीरोइन के डांस मत कराना अपने मंदिर में। हमारे ऐसे भी हमारे कुलवंत जोशी जी, ऐसे तगड़ा ब्राह्मण भी मैंने बहुत दिन के बाद देखा है। ये देखने में क्षत्रिय जैसा लगता है। खड़ा हो जाओ कुलवंत, एक बार जोरदार अभिनंदन है कुलवंत का। ये ठाड़ा पंडित है भाई, ठाड़ा पंडित है और साड़ा पंडित है, हमारा है पंडित। और हमारे श्री हरि जुल्का जी, ये तो बहुत बड़े विद्वान भी हैं। और भाई गौतम प्रभाकर जी, राजेंद्र शर्मा जी, सभी को। और पहले एक भजन गाते हैं, हाथ उठा करके तालियों से गाना पड़ेगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में। बहुत अच्छे। ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है, इसीलिए वो दुनिया का है, जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। ओ समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला, उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों हाथ उठाकर, मेरी माता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरी माता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भजन कीर्तन प्रभु की आराधना
ये करने से अपने भीतर एक शक्ति आती है। एक है ह्यूमन पावर, वो भी बहुत है हमारे भीतर। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड डिवाइन इमोशंस, अनलिमिटेड पावर है। लेकिन जब उसमें डिवाइन पावर जुड़ जाती है, भगवान की शक्ति जुड़ जाती है, भगवती माँ की शक्ति जुड़ जाती है, माता दुर्गा की शक्ति जुड़ जाती है, तब फिर हम भगवान के प्रतिनिधि बन जाते हैं। हमारे माध्यम से ईश्वरीय शक्ति काम करने लगती है। यहां हमें आना है। 3 चीजें तो हम सबके पास हैं जो दिखती हैं। 3 विजिबल पावर्स हमारे पास में। देयर आर 3 विजिबल पावर्स विद इन अस, हम सब में है। 1 इज इंटेलेक्चुअल पावर, 2nd is emotional power. This is not emotional weakness, emotional power. And 3rd is physical power. पहले आप इन 3 पावर्स का यूज कीजिए। अपने शरीर के एक एक रोम रोम को पुरुषार्थ में लगाइए। मैं बोलता हूं, नेवर डू एनी रॉन्ग एक्शन, नो रॉन्ग एक्शन, नो रिएक्शन and no inaction. Every time do right action, positive action. Do positive, be positive, think positive, and always be happy. Stressful नहीं, stress free life. Stress free life, happy. और ये जी सकते हैं आप। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आपको डिविनिटी चाहिए, आपको अपलिफ्ट होना है, तो सबसे पहले अपने शरीर की ताकत को प्रयोग करो। इसमें भी बहुत ताकत है। पॉजिटिव वर्क में, क्रिएटिव वर्क में, डिवाइन वर्क में, सोशल वर्क में अपने शरीर की पूरी क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करना और अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना। अभी हमारे बहुत से यंगस्टर्स हैं यहां पर, वो क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं। जिम जा करके उनको जंग लग जाता है, उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। देखो, आदमी की बॉडी कैसे होनी चाहिए? उसकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। पूरे शरीर की मांसपेशी ना पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए। शरीर की, आपके चेस्ट की, ब्रेस्ट की, स्टमक की, सारे एब्स। कितने हैं? बोले बाबा जी कितने ऐब हैं? हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है। आजकल कितने ऐब बनाते? 6। देखो, 6 ऐब वालों, ये सिंगल ऐब बाबा है। और ये सिंगल ऐब जब ऐसे बनता है ना सामने से, तब फिर पूरी दुनिया घूमती है। अभी तो खा पी के घुमा रहा हूं। तुम्हारा तो पूरा ठसाठस भरा हुआ है। तुम आगे से घुमाते तो तुम्हारा पीछे से घुमा। देखो, जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनकी बॉडी क्या हो गई है? स्टिफ हो गई है। अब उनको बोलो ना आगे झुकने के लिए, तो ऐसे आगे नहीं झुकते। को जो जिम जाने वाला है वो यही रुक जाएगा, वो यहां तक मुश्किल से जाएगा, और यहां चला भी गया तो माथा ऐसे नहीं लगा पाएगा। स्टिफनेस आ गई ना, स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए बॉडी में। स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट बॉडी।
देखो, अपने अपनी ट्राई करके देखना कितना खींचता है। ऐसे करीब 3-4 इंच खींचना चाहिए। इतना तो सॉफ्ट होना चाहिए। पतली चमड़ी, कहते हैं ना बहुत मोटी चमड़ी का है। इतनी सी ऐसी होनी चाहिए, है? एकदम फ्लेक्सिबल सॉफ्ट बॉडी, और बहुत सुंदर भी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फिगर्स, एकदम फर्स्ट क्लास। इतने अच्छे फिगर्स होने चाहिए कि आपको मॉडल्स, एक्टर्स, सीरियल्स में किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़े। अपनी पत्नी का मॉडल जब खराब हो जाता है तो आदमी की निगाहें इधर उधर जाती है। तो जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं, आप भी अपना मॉडल अच्छा बना के रखो। फिर कहते मेरा पति इधर उधर देखता है, तू सोनी हो जा, तो तेरा पति इधर उधर क्यों देखेगा। और अपने आप को अच्छा बनाओ। और ये हस्बैंडों के भी बैंड बजे हुए हैं, मोटे तगड़े हो रखे, फूल के गुप्पा। शादी हो गई तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कौन सा एवरेस्ट चढ़ गए हो। शादी होने से पहले पतले पतले होंगे, हा? बिफोर मैरिज दे बिकम स्लिम, स्मार्ट, फ्लेक्सिबल, बहुत दिखाने की कोशिश करें। और शादी होने के बाद इधर से पति उधर से पत्नी, कंपटीशन में बढ़ता है। हाँ, किसी का भी पेट मोटा हुआ तो फिर मैं माता रानी से बोलूंगा गड़बड़। सुनो, आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट होना चाहिए। तो सब क्या करना, सुबह सुबह ऐसे बैठ के करो, ऐसे बैठ जाओ पद्मासन में। If your body is not flexible, so you can sit in every comfortable pose. और बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल है तो देखो, बिना ही हाथ उठाए, खाली पैर को उठाया, इधर रख दिया, इधर से उठाया, इधर रख दिया। इतना हल्का होना चाहिए ना, और इतना हल्का होना चाहिए कि पीछे से भी पकड़ लो। देखो ऐसे, बोले बाबा अभी तो 2-2 फीट का फासला है। और देखो, विदाउट एनी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं, नो एक्शन, स्टे इन ए सिंपल पॉज, and within 1 or 2 minutes you can achieve full energy. कैसे? ऐसे बैठ के और ऐसे उठ जाना। जो अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानता हो, इधर ऊपर आ जाओ। Who is the strongest person here? अरे एक दो तो आओ, हमारे जोशी जी तो हैं, उनको छोड़ दो। और दूसरा देखो, वो पीछे एक मुंडा है, आजा देखता हूं कितनी ताकत है। ए सरदार, कोई नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। ये मुंडा थोड़ा जोरदार लगा। हाँ, इधर जूते निकाल करके, और फिर जो मैं करूंगा वो करना पड़ेगा। तेरी पैंट फट जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इधर बैठ, पद्मासन लगा पहले तो। लगा तो लिया छोरे ने। हाँ, अब हाथ ऐसे रख और ऊपर उठा दे, और जब तक मैं ना नहीं बोलूं यहीं रहना। इसके लिए ताली तो बजा दो, अच्छा लड़का है, करने की हिम्मत तो की। कहां पर आया छोरा? कोई नहीं, नीचे आजा, फिर उठ जा। कोशिश पूरी कर रहा है। डू अगेन। कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले।
इस छोरे के लिए ताली बजाई दो। चलो, अरे एक माला दो, इसको पास हो गया ये लड़का। आप 1 मिनट ऐसे कर लो, ओनली 1 मिनट, यू डू 1 मिनट। क्या नाम बेटा? सिमरन। सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना। जोरदार तालियां सिमरन के लिए। 1 मिनट में पसीना आ गया इसको। यू डू ओनली 1 मिनट दिस, ओनली 1 मिनट। 1 मिनट ऐसे कर लो एंड यू गेट कंप्लीट हेल्थ। You can achieve complete health. Only 1 or 2 minutes. You have no time. I'm Swamiji, very busy person. So you do this easy. और जो जवान बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए है, बड़े वाले करेंगे तो थोपड़ा फूट जाए, शकल ही बिगड़ जाए। ये बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए, सब बच्चों को कराना 5 postures. This is 1 and second. फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये 5वां। ये बच्चों के लिए। और बड़े वाले ऐसे बैठ जाना। दिस इज वज्रासन फॉर एवरीवन। आफ्टर फूड यू कैन डू दिस। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। अनदर एक्सरसाइज इज, अनदर पोस्चर इज ब्रह्मचर्य आसन फॉर इनफर्टिलिटी, फॉर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। दिस इज, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आसन। क्या है ये? बिल्कुल सिंपल, ऐसे बैठ सकते हैं। बच्चे तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है योगा, उनको कराना। और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये तो सभी कर सकते हैं। देखो ये बच्चों, बटरफ्लाई करो। बच्चे बहुत आए हैं, सब बच्चों को कराइए। ये बटरफ्लाई, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की बटरफ्लाई तो पूरी हो जाएगी, बड़ों वालों की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ती रहती है। छोटे वाले करेंगे तो नीचे तक आएंगे, ऊपर वालों की तो मैंने कहा ऊपर ऊपर ही उड़ेगी। इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और सूर्य नमस्कार, ये तो सबको करना चाहिए। 10 to 20 times you do daily. Only this Surya Namaskar. This is the complete physical fitness exercise. Not required any exercise. This is complete. Like, look this. करना बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। बच्चे शर्मा जाते हैं ऐसे।
एक बार हुआ. This is one round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. पूरी फिटनेस होनी चाहिए. सबसे पहले हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. Health is wealth. The first wealth is your health. Without health you cannot do anything. So सबसे पहले हेल्थ अच्छा करो. अब जितने मोटे मोटे हैं ना, किसी किसी के हैं ना कमर के घेरे बड़े तगड़े तगड़े हो रखे. इतनी इतनी कमर. कमर कितनी होनी चाहिए? देखो कमर इतनी होनी चाहिए. अपनी अपनी बीएमआई टेस्ट कर लो. ये बीएमआई टेस्टिंग है. अपनी अंगूठे को यहां रखो और सामने से पेट पकड़ो. आपकी भी इतनी है ना. आपको कोई कमर पतली करनी है तो ये क्या करो 50-50 टाइम्स. This. After 1 week or 1 month, you become slim and smart. एकदम ये खत्म हो जाएगी. इधर लटकता है ना, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से. तू चाले तो धरती हाले. ये ठीक नहीं. देखो कितना फ्लेक्सिबल है ना. एक लड़का करने में लगा हुआ है. कम यार. बच्चों को बहुत मजा आता है मेरे साथ. कम. नहीं तो भी लगता है किसी तगड़े बाप का ही बेटा है. जेनेटिक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर. ऐसा कर. यस. फिर ऐसे. हाँ. कर. Now do again. हाँ. फिर क्रॉस करके देख ऐसे. Do it fast. Don't bend your knee. Keep your knee straight. Next. Do this. आगे लगा यहाँ. चलो इसने 3 तो अच्छे किए. बैठ. ऐसे बैठ. और ऐसे हाथ करके कर. Keep your hands straight. Don't bend your hand. ऐसे करना. जितने भी मोटे मोटे हैं ना सब पतले पतले हो जाएंगे. So this. This is very easy. जितने मोटे मोटे हैं सीख लो, सारे पतले पतले हो जाओगे. दो 3 मिनट ऐसे कर लेना. माताओं को यूट्रस में फाइवस ओवरी में सिस्ट एंड पुरुषों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम. दिस इज द मेडिसिन फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी, फॉर यूट्रस ट्यूमर एंड फॉर ओबेसिटी, फॉर प्रोस्टेट कैंसर. दिस इज द मेडिसिन. दिस इज द वे ऑफ ट्रीटमेंट. फिर ऐसे एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. फिर ये देखो ऐसे क्रॉस करके. हाँ क्रॉस से. Do fast.
ये अकुल है बेटा, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए. हाँ, he's doing very well. So you sit in this position and you do breathing exercise with me. Come. ये तो लगता है पिछले जन्म का कोई मेरे से योग सीखते सीखते ही ऊपर गया, जल्दी लौट के आ गया है. आप लोग भी बैठे बैठे कर लो, कोई यहां कोई पिकनिक पार्टी में थोड़ी आया. Mr. Telma is doing very well. You became a yogi. This is very beneficial breathing, very good breathing. And if you are doing this, you never become unhealthy. This is very good for asthma, allergic rhinitis, bronchitis. This is very good. और इससे आपका एनर्जी अब 10 टाइम्स बढ़ जाता है. You become 10 times more powerful. Next, देखो बेटा, ए अकुल, yes, इधर नजदीक, तो बढ़िया कर रहा है. बस you close your mouth. देखो बच्चों में है, एक ही बार में सीख गया, ऐसे होना चाहिए. He's doing very well. ये किसका लड़का है? अच्छा तुम्हारा ही है. ठीक है, बाबा जी के पकड़ में आ गया. अब तेरा जैसा पेट मोटा नहीं होगा इसका. ऐसे. This is very good exercise for stomach, for liver. This is very scientific and complete exercise for stomach, for liver, for intestine, for pancreas, for prostate, for uterus, for ovary, for lung, for thyroid, and for every part of a inner side. There is no exercise in gym, and there is no medication for hepatitis, for colitis. There is no curing process for thyroid problem. You can cure your thyroid problem. You can cure your asthma. You can cure your hepatitis. You can cure your colitis, pancreatitis, your prostate cancer. You can dissolve your tumor, uterus का ट्यूमर. ये आपको भी करना आता है? करके बताओ. ये तो इससे भी अच्छा कर रही है. आपका क्या नाम है? यशस्विनी. इसके लिए तो और तालियां हो जाए. She is doing very well. You do? Yes. आप पहले से कर रहे हो ना? हाँ. किसने सिखाया? पापा ने. इसके पापा कहाँ हैं? ओह, ये गैस वाला ही पापा है क्या? एसिडिटी वाला ना? हाँ. He was acidity, hyper acidity patient. Now whole family is doing yoga. मैं योग फैमिली बनाना चाहता हूँ और पूरे विश्व को योग में बनाना चाहता हूँ. Whole world became yogi. Disease free, drug free, violence free, healthy, wealthy, prosperous, spiritual fall through yoga. ओ, ये दोनों बच्चे बड़े गौर से देख रहे हैं. कम ये इतना अच्छा है, सब बच्चे इसको कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं. दिस इज
the one exercise for all body. This is the one medicine for all diseases. This is the one way for self-healing and self-realization. When you are doing this, then automatically God के साथ, super soul के साथ connect हो जाते हैं. Connectivity with the super soul. Oneness with the Almighty God. Oneness with the universe. ये इतना जबरदस्त है. एक एक्सरसाइज आपको भी आता है? आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ. कोई नहीं, ये तो अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं. ये बच्चे तो सारे तैयार हो गए हैं. आपको भी आता है? करके बताओ. जूते निकाल के आना पड़ेगा. सब बच्चों को ऐसे योग का क्रेज होना चाहिए. और दिस इज आवर नेक्स्ट जनरेशन. So you do? कोई बात नहीं. बाबा पर और बापू पर कोई भी बैठ सकता है. ये सारे तो यही बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ. Down, down. Yes, yes. Do everybody this Kapalabhati? Yes, yes. बैठने दो, बैठने दो. यही काम आएंगे थोड़े दिनों बाद. तो ये तो बहुत से तो ऊपर चले जाएंगे. Exhale the breath. Look me. Look here. First, do this. No, this is not good. Exhale the breath. Total concentration on exhaling. पूरा ऊपर तक भर दो. अभी और भी करवाएंगे. हाँ, देखो मेरी तरफ मुंह करके बैठो बेटा. इधर इधर मुंह करके बैठो. कीप योर फेस इन दिस साइड. डोंट डू दिस. दिस इज रॉन्ग. Do this. No. This is wrong. This is wrong. Do. You are doing very well. Do this. You are doing very fine. Good. Good. This is Kapalabhati. What is the name of this breathing exercise? Say. एक बार इन सब बच्चों के लिए तालियां बजाइए. एक भजन सबको गाना है, ठीक है? हम छोटे बच्चे थे तब गाते थे. वह शक्ति हमें दो दया निधे. सब बोलो. वह शक्ति हमें दो दया निधे. कर्तव्य मार्ग पर डट जावे. वह शक्ति हमें दो दया निधे. कर्तव्य मार्ग पर डट जावे. पर सेवा पर उपकार में हम. पर सेवा पर सब बोलो. हम पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे. पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे. निज आन मान मर्यादा का. निज आन मान मर्यादा का. प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे. प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे. ये बच्चों को आपको सिखाना है बचपन से ही.
निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे, उनको तारे खुद तर जाए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। बोलिए भारत माता की जय। बोलो माता रानी की जय। अच्छा सुनो, अब बच्चों अभी तो ब्रीदिंग कर रहे थे ना, वो था कपालभाति। हाँ, तो एवरी पर्सन डू दिस कपालभाति 5 minutes per day minimum. And fast breathing, this is Vastrika. Do this. तीन साल का बच्चा भी इसको कर सकता है। सब मिलकर के मंदिर में एक बार कम से कम वीक में क्लास लगानी चाहिए, योग की भी ऐसे करना है। और सबको योग का मतलब है यूनाइट रहना, जुड़ करके रहना। तो सब संगठित होकर के रहें। ईगो एंड इग्नोरेंस ये बड़ी खराब चीज है। सब मिलजुल करके रहे। सारी सृष्टि देखो मिलजुल के काम कर रही है। पूरी नेचर, सूर्य, चंद्रमा, धरती, हवा, पृथ्वी, मिट्टी, पानी, सब कुछ। हमारा बॉडी को देखो, आईज, ईयर्स, ब्रेन, हैंड्स, लेग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, सब में कितना कोऑर्डिनेशन है। ऐसे यूनिटी इन आवर बॉडी, यूनिटी इन यूनिवर्स, यूनिटी इन आवर सोसाइटी, यूनिटी इन आवर रिलीजन, यूनिटी इन स्पिरिचुअलिटी, एवरीवेयर यूनिटी, यूनिटी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप और ज्यादा यूनाइट होंगे अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर और ज्यादा गौरव रखेंगे। और मैंने कहा ये दुर्गा टेम्पल को तो आप नंबर 1 बनाएंगे ही, आप भी नंबर 1 बनेंगे। ये बिकम नंबर 1। हेल्थ में नंबर 1, हेल्थ, नॉलेज, बिजनेस, एवरीवेयर। चलो नेक्स्ट, 2 ब्रीथिंग। दिस इज 1 ब्रीथिंग, दिस इज 2nd, and this is 3rd breathing. Do this, everybody. Raise your right hand, and look this. Inhale through your left nostril. सब करके देखो, आप लोग भी कर लो, ये बच्चे कर रहे हैं तो everybody can do this. Alternatively breathing. Do the better. This is very good for brain. You want sharp brain, sharp memory, huh? This is very good breathing, alternative breathing. Left nostril related with your right brain, and right nostril related with your left brain. You can activate your right and left brain through breathing.
दिस इज द प्रोसेस. अनुलोम विलोम. इसके बाद देखो एकदम आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए ना लाइफ. पीस ऑफ माइंड के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ, कंसंट्रेशन के लिए. कीप योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फॉरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, क्लोज योर ईयर्स विद योर थम्स, क्लोज योर माउथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल इट विद द हमिंग ऑफ ओम, बम्बल बी हमिंग, like this. Do these 3 times. यह है भ्रामरी प्राणायाम. Keep your both hands on your knees. Keep your neck and back straight. Close your eyes. Take a deep breath and exhale it with the sound of Om. This is called Udgita Pranayam. This is very important. Breathing for meditation, for concentration. Again, take a deep breath. Three to 5 times we can do this, and now complete silence. Concentrate on your breath और ओम. ऐसे हर दिन थोड़ा श्वासों पर फिर मन को टिकाना, शांत होकर के complete silence. ऐसे बैठना. फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथों को पकड़ना. ऐसे ये एम्प्टी स्टमक सबको करना है सुबह सुबह. You do only 2 breathing, only Kapalabhati and Anuloma. This is enough. And some light with different exercises, Surya Namaskar and other exercises. तो आपको इतना तो करना है सबको, ठीक है? तो सुबह जल्दी उठो, पानी पिया करो. सुबह उठ के क्या पीना है सबसे पहले? पानी. पानी पिया करो. फिर एक्सरसाइज करनी है. तो सुबह उठ के पानी पीना, पानी पी के टॉयलेट जाना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, ठीक है? ऐसे एक रूटीन बना लो. सुबह नहीं कर पाते तो शाम को खाने के 4 घंटे 5 घंटे बाद कर सकते हैं, आफ्टर लंच. और खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना. खाने के कितनी देर बाद पानी पीना? 1 घंटे बाद. दूध, मिल्क एंड सोल्ट साथ साथ नहीं लेना. स्लोली ईट, स्लोली, डोंट ईट फास्ट. और मुंह बंद करके खाना. देख ये चुटकू ऐसे खाना, ऐसे नहीं खाना. ईट स्लोली. हाँ, और खाते समय बोलना नहीं, उससे बाहर थूक पड़ता रहता है. तो और सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, ठीक है? सुबह उठ करके फिर पानी आदि पी के टॉयलेट जाके सब रोज एक्सरसाइज करना. अब एक भजन गाएंगे, उसके बाद सब जाएंगे, ठीक है? तालियों के साथ. कैसा काम करना है? कुछ बड़ा काम करना है जिंदगी में.
जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। सबको गाना है और ऐसे बनना है, कुछ नया करके दिखाना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ए ताली के साथ गाओ। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। आपको दुर्गा मंदिर में ऐसे ही करना है, अपनी लाइफ में ऐसे ही करना है, पढ़ाई में भी ऐसे ही करना है। तालियां। मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की जय। ऐसे पूरा जोश जज्बा अंदर रहना चाहिए। अच्छा सुनो, अब आज एक संकल्प लेके जाना, सबको 1 to 10% कंट्रीब्यूट करना है सोशल स्पिरिचुअल कॉज के लिए। मैं 100% कंट्रीब्यूट करता हूं, यू कैन डू 1% और 5-10%। बोलो तो सबको करना है। यही हमारी लाइफ है, यही हमारा परमानेंट एसेट है। बाकी तो यही खाएंगे पिएंगे और सब मिट्टी में मिल जाएगा। खाया पिया भी लैट्रिन बन के मिट्टी में मिल जाता है, और तुम्हारा शरीर भी मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।